रेक्टिलिनियर फिगर्स एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज नंबर क्या है? देखो एक बार, 14C। ठीक है, इसके बाद टेस्ट योरसेल्फ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। See, question number 2. Question says E is the midpoint of side AB and F is the midpoint of side BC of a parallelogram ABCD. So firstly, I have a parallelogram ABCD. Okay. E is the midpoint of AB. So E is here, midpoint of AB. F is the midpoint of DC. So I have to prove that AEFD is also a parallelogram. AEFD. So this is a parallelogram. मुझे prove करना है. ABCD is already a parallelogram. जो बड़ा वाला outer figure है, that is already a parallelogram. ठीक है. देखो, AB is equals to CD. Opposite sides of parallelogram. Correct. Opposite sides of parallelogram are equal. Okay. If AB equals CD, I can say half AB equals half CD. अगर पूरी साइड इक्वल है तो half will also be equal. Now F is the midpoint and E is also the midpoint. So AB का half क्या होगा? AE. Half of AB is AE, correct? Because E is the midpoint. So this is AE. And half of CD is DF. This is CD. उसका half is DF. Correct? तो मतलब what I proved is अगर ये पूरी साइड इक्वल है तो ये हाफ भी इक्वल ही होगा. करेक्ट. So that means I proved AE equals DF. And if you see carefully, AB is parallel to CD because parallelogram है. These two lines are parallel, right? These two lines. अगर ये पूरी लाइन parallel है तो आधी लाइन भी parallel ही होगी. Parallel ही होती है. ठीक है. So if the full line is parallel, that is AE is parallel to DF. तो इसको 1 देते हैं, इसको 1, 2. From 1 and 2, one pair of opposite side is equal and parallel. Therefore, AEFD is a parallelogram. Understood? Easy समझाइए बहुत.
diagonal BD of the parallelogram ABCD. So let us draw parallelogram. अच्छा, diagonal BD. So this is the diagonal BD bisects angle ABC. Sorry, bisects angle B and D. मतलब ये जो BD है इसने इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट किया. ओके, प्रूव दैट ABCD इज a rhombus. ओके, इजी है. लेट्स से इसको मैं नाम देता हूं x x एंड दिस इज y y. नाउ सी parallelogram ABCD is already a parallelogram, correct? If ABCD is a parallelogram तो opposite sides तो equal है, correct? ठीक है. BD bisects angle B, ये आपको क्वेश्चन में बोला है. BD bisects angle B and D. मैं पहले B के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है. BD bisects angle D. तो जो एंगल्स है दोनों ABD and angle CDD, let us take those angles as x. मैंने इन दोनों एंगल को x लिया. ओके, नाउ see carefully, these two lines are parallel. सो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, z बन रहा है. अगर ये z बन रहा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी x. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. सिमिलरली ऐसे भी z बनेगा, है ना, एंड दिस x विल बी इक्वल टू दिस x. सेम मिला, करेक्ट. आप ऑपोजिट एंगल से भी कर सकते हो वैसे, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो उससे भी आपको x मिल सकता है. वो तार करेक्ट. तो मैं लिख देता हूं एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CDB. alternate angles and angle DBC is equals to angle ADB. सेम alternate angles. तो मतलब ये चारों एंगल x हो गए. आगे बताओ. सी अब ये चारों एंगल x हो गए. नाउ जस्ट कंसीडर एनी वन ऑफ दिस ट्रायंगल. सम फॉर एग्जांपल आई टेक दिस ट्रायंगल, कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है. इन दिस ट्रायंगल this angle is equals to this angle. So this triangle becomes an isosceles triangle. So that means AB will be equal to AD. Correct? So in triangle ABD, I will first write that angle ADB is equals to angle ABD. Okay? So therefore, AB equals AD by isosceles triangle property. Yeah, you can write side opposite to equal angles are equal. तो मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है. एंड हमें ऑलरेडी पता है जो ए बी है वो सी डी से तो इक्वल ही है, एंड जो ए डी है वो बी सी से इक्वल है. ये जो ये दोनों आपको इक्वल मिला, बट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज ऑलरेडी इक्वल टू दिस साइड, तो मतलब चारों साइड सेम हो गया. करेक्ट. Therefore all sides are equal. So therefore ABCD is a rhombus.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। What all is given in the question? First of all, ABCD is a parallelogram. Then these three sides are equal. ये जो parts है ना, these three sides are equal. Okay. And I have to prove that DE is parallel to FB. DE is parallel to FB, मुझे prove करना है. Okay. First, what I'll do is let us prove these two triangles congruent. Okay. And you will do that. Tell me how these two triangles will be congruent. So these two sides are equal, correct? Then AE equals FC, बरोबर. And the angle between these two sides, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है? दिस एंगल एंड दिस एंगल. यहाँ पे z बनेगा. So you can by SAS test triangles are congruent. Prove it. तो प्रूव कर दिया आपने फटाफट. AD equals BC, then angle DAC equals angle BCF, and AE equals FC. So by SAS test, triangles are congruent. Triangle ADE is congruent to triangle BFC. ऐसा कुछ CBF नाम देते, that would be right. CBF. Okay. So triangle congruent हो गए. Now triangle मुझे prove क्या करना है first part में? What do I have to prove? See, read.
DE इज पैरेलल टू FB प्रूव करना है मुझे, करेक्ट? कैसे कर सकते हैं बताओ? सबसे पहले सी, वंस यू प्रूव द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आई कैन से दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. व्हाई? CPCTC. So angle ADE is equals to angle BFC by CPCTC. ठीक है? Now, if these two angles are equal, इनका जो linear pair होगा, this angle and this angle, they will also be equal. Correct? Therefore, by linear pair, angle DEF will be equal to angle BFE. लीनियर पेयर हमेशा सेम ही होगा. समझोगे, ये दो एंगल 50-50 है, दोनों का लीनियर पेयर 130 बनेगा. दैट विल बी इक्वल. अब क्या होगा, ये जो दो एंगल आपने इक्वल लिखे हैं ना, दीज टू एंगल्स, ओके, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर द लाइन DF एंड FB. यहाँ पे देखो Z बन रहा है ऐसा. हाँ, तो ये उनके ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाते हैं जो इक्वल है. अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल. उल्टा. ठीक है, लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल लेते हैं वैसे. ठीक है. सो व्हाट वी विल राइट इज angle DEF and angle BFE form alternate angles for DE and BF. Therefore, DE is parallel to BF. FB लिखा है ना, तो let us use FB only. ठीक है. अच्छा, DE, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका प्रूफ, करेक्ट? सेकेंड पार्ट को क्या करूं? DE इक्वल्स FB बोल रहे हैं, कैसे प्रूफ करूं? हो ही गया डायरेक्ट प्रूफ. CPCTC कुछ करना ही नहीं है. कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? हाँ हाँ, ऐसे टेस्ट से हो जाता है. चल कर सकते. ये दो ट्राइंगल्स बोल रहे हो ना आप, ये और ये. हाँ, कर सकते थे. तो ये हो गया. डी इक्वल्स FB भी हो गया. और क्या, और कुछ है? DEBF इज ए पैरेललोग्राम. तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. DEBF. कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ऑलरेडी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आपको इक्वल भी मिल गया और पैरेलल भी मिल गया, तो हो गया. डन.
So in the next question, they have given that AP and BQ are angle bisectors. AP and BQ are angle bisectors. See, angles को mark भी किया है, correct? ये जो AP है, AP, ये इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल है दोनों एंगल्स, ठीक है? एंड इसी तरह से जो BQ है, दिस आल्सो बाइसेक्ट्स these two angles. Okay. In the first part, you have to prove that AQ equals BP. बिना कॉन्ग्रुएंट के भी हो जाएगा. सी, क्वेश्चन में आपको बोला है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज अ पैरेललोग्राम. इफ ABCD is a parallelogram, see, ABCD is a parallelogram. They have given in the question. So I can write that AD is parallel to BC. That is, I can write AQ is parallel to BP. Well, these two lines are parallel, I mean to say. Correct? ठीक है. Let us consider these two angles as x. ये दोनों equal है and ये दोनों equal है तो इनको y. ठीक है. आप लिख भी दिया करो क्वेश्चन में कि जो एंगल्स के नाम है ना, जैसे एंगल QAP इक्वल्स एंगल BAP, let them be x, and angle PBQ equals angle ABQ, let them be y. मैंने सिर्फ नाम दिया है उनको. ठीक है. वैसे आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन में. ये x है. ठीक है. नाउ सी केयरफुली, यहां पे z फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा? QAP is equals to APB, करेक्ट? सो ये और ये एंगल सेम हुआ, ऑल्टरनेट एंगल से, करेक्ट? सो आई कैन राइट एंगल QAP इक्वल्स एंगल APB इक्वल्स x. तो ये भी x हो गया. ठीक है. अगर ये x हो गया तो कंसिडर दिस ट्राइंगल. ये ट्राइंगल स्पेशल ट्राइंगल बन गया. क्या हो गया वो? ये आइसोसेलेस बना, दो एंगल सेम हो गए. अगर दो एंगल सेम है तो विच टू साइड्स आर इक्वल? AB इक्वल्स BP, करेक्ट? ये दोनों एंगल्स अगर सेम है तो ये दोनों साइड सेम हो गए, करेक्ट? सो आई विल राइट देयरफॉर AB इक्वल्स BP. ओके. इसको 1 नाम दे देता हूं. अब जैसे ये चीज मैंने इस ट्राइंगल के लिए की ना, सिमिलरली आई कैन से दैट दिस इज आल्सो अल्टरनेट. Q भी Y हो जाएगा, करेक्ट? सो आई कैन राइट that angle AQB will be equal to angle PBQ will be equal to Y. So this will also be Y. Again, reason will be alternate angles. So therefore, AB equals AQ. Isosceles triangle property. इसको नाम देते 2. So from 1 and 2, I can say that AQ equals BP. First part of the sum is proved.
ठीक है। नाउ आई इरेज दिस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हमने प्रूव कर दिया। नाउ कंसीडर द पैरेललोग्राम ABPQ। सी ABPQ, इन ABPQ, ये जो एक फिगर बनेगा ABPQ, ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बाद इस फिगर में AQ और PB, ये पैरेलल तो आपको पता ही है, ठीक है। सी एक्चुअली पहले हम उसको इक्वल प्रूफ करते हैं। सी, ये पूरा साइड AD इज इक्वल्स टू पूरा साइड BC, करेक्ट। बट व्हाट इज AD मेड अप ऑफ? AQ प्लस QD, करेक्ट। एंड व्हाट इज BC मेड ऑफ? CP प्लस PB, ओके। बट AQ इज इक्वल्स टू BP, ये कैंसिल हो गया, है ना। सी, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल, तो इसका मतलब ये रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल ही होगा, है ना। सो देयरफॉर QD इक्वल्स CP। बट वेट, इसकी जरूरत क्या है? PQ प्रूफ किया हमने, मुझे क्या प्रूफ करना है? PQ इक्वल्स, इसको काट दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने समझा कि इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। एक्चुअली यू हैव टू प्रूव दिस एज पैरेललोग्राम, सॉरी। सो इन quadrilateral ABPQ, sorry, these two sides AQ and PB parallel भी है और equal भी है। AQ and BP are parallel and equal both। AQ and BP, देखो AQ और BP इक्वल मिला था, और पैरेलल तो ऑलरेडी है ही। तो अगर पैरेलल और इक्वल दोनों है तो मतलब पैरेललोग्राम हो गया। इसके बाद करते सेकेंड पार्ट, इसके बाद ज्यादा आसानी से हो जाएगा। सो AB इज, sorry, AQ is equals to BP and AQ is parallels to BP. Therefore, ABPQ is a parallelogram. Okay. अगर ABPQ parallelogram है तो I can say AB equals PQ. डायग्राम देखो, ओके। बट AB जो है वो ऑलरेडी CD से इक्वल है। AB और CD तो इक्वल ही है पैरेललोग्राम की वजह से, एंड AB इज आल्सो इक्वल टू PQ। So therefore, PQ equals CD. This was my third part actually, and this was my second part. Done. Next question number 6. Again, in the question they have given that we have two bisectors. मतलब these two angles are equal and these two angles are equal. A, B, C, D, E. I have to prove that AB equals twice BC. ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंगल्स को नाम दे देंगे एक्स एक्स, इसको वाई दे देंगे वाई वाई, ठीक है। सो एक स्टेप में लिख भी देंगे,
ना एबीसीडी पैरेललोग्राम है, कहीं ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहा है यहाँ पे? ये ऐसा ऑल्टरनेट बनेगा, ठीक है? तो ऐसा ऑल्टरनेट बनेगा तो इधर भी एक्स आ जाएगा, ठीक है? इधर भी ऑल्टरनेट बनेगा ऐसे, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। करेक्ट, दो ऑल्टरनेट लिख देते हैं पहले इनको। एंगल डी ई ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ए ई। नाउ इफ these two angles are equal, इसका मतलब what can I say about these two triangles, this triangle and this triangle? इन दोनों ट्रायंगल के बारे में, both are isosceles triangle, both isosceles मतलब ये दो साइड सेम हो गई and these two sides are equal, correct? So I can say that therefore by isosceles triangle property AD equals DE and BC equals CE. Okay. Now AB equals CD, ये सही है बरोबर? बट AB को आई कैन राइट इट एज, सॉरी CD को आई कैन राइट इट एज DE प्लस CE, DE प्लस CE, करेक्ट? अब DE को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? DE को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? AD से। BC को किस CE को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? BC से, ठीक है? आपको प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में? 2BC, मुझे 1BC मिला। AD और BC का क्या रिलेशन? AD और AD एंड BC दे आर इक्वल, तो ये भी BC हो गया, हो गया प्रूफ। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक्चुअली मतलब ये चारों इक्वल हो गया, सी दीस टू आर इक्वल एंड दिस इज आल्सो इक्वल विद देम, ये चारों साइड इक्वल ही हो गए, ऐसी बात है। यहाँ तक हुआ था ना, यहाँ तक हुआ था ना, सेवन। डन। Prove that bisectors of the opposite angles of parallelogram are equal। अच्छा, ये फोर्थ जैसा सम है। सी दिस इज अ पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स है वो इक्वल है। So this is the bisector, let's say, of the one angle, and this is the bisector of another angle. Correct?
ऐसे ही डायग्राम बनाऊंगा ना। इसको नाम दे देते हैं ABCD, और इसे E and F। So DE is the bisector of angle D, and BF is the bisector of angle P। और पैरेलल प्रूफ करना है ना आपको, मतलब आपको इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। सो हम कह सकते हैं कि हमें हम इसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर सकते हैं समहाउ। बट कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, ऑपोजिट एंगल सेम ही है एक्चुअली। सी, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल भी एक्स ही हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो सेम। ठीक है। सो सी, अब इतना तो आपको मिल गया ना। अब हम सी दीज टू ट्राइंगल्स, इन दीज टू ट्राइंगल्स this angle is equal to this angle, opposite angles of parallelogram. This side is equals to this side, opposite sides of parallelogram. And this angle is equal to this angle, दोनों x x है। So by ASA test, triangles are congruent. Let us write that. ये alternate नहीं है, this is
DE equals BF CP CTC. सो हमें ये जो फिगर है, इन दिस फिगर आई हैव these two sides equal, एंड यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल हुए. x is equals to x, करेक्ट. खाली ऑपोजिट एंगल से, खाली ऑपोजिट एंगल से आपको मिलेंगे कैसे? सो ये ऑपोजिट एंगल मिले, ओके. ऑल्टरनेट से कर सकते थे वैसे आप, जैसे अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल बहुत सारे तरीके करने के. अभी करस्पॉन्डिंग एंगल भी दिखा दो, जैसे अगर ये एंगल x हो गया तो दिस टू बिकम्स करस्पॉन्डिंग, सो लाइंस आर पैरेलल, वो भी होता है. बहुत सारे तरीके एक्चुअली करने के इसको. यहाँ पे जस्ट सी देखो, बहुत सारे तरीके, मैं आपको सब बताता हूँ, लास्ट में एक ही करेंगे तो. ओके. पहला तरीका क्या है, दैट इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लो. तो आई प्रूव दैट साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड इन दिस फिगर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. एक्स और एक्स ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है. देन ये दिस एंगल, ये भी एंगल एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, बिकॉज ऑफ ऐसे जेड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे भी जेड बन रहा है, ये एंगल्स इक्वल है, ठीक है. दिस इज इक्वल टू दिस. तो अब ये क्या होता है पता है, सी ये x एंड दिस x, these form corresponding angles for these lines, so the lines are parallel, हम बोल सकते हैं ये corresponding angles बनते हैं इन lines के, ठीक है. बट इतना भी काफी है. आपने ये साइड्स को इक्वल प्रूफ किया, एंड यू से दैट एंगल एफ डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ई बी एफ, ओके. सो अगर ये एंगल्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स, तो देयरफॉर DEBF is a parallelogram. Therefore, DE is parallel to BF. ये प्रूफ करना था. हाँ, बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल. ठीक है, एट सम करते हैं. Prove that bisectors of interior angle of a parallelogram form a rectangle. ठीक है. बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है, देखो, जैसे these are my four angles A B C D, ओके. अब इन चारों के बाइसेक्टर्स मींस ए का बाइसेक्टर अगर कुछ ऐसे होगा, बी का बाइसेक्टर कुछ ऐसे, सी का बाइसेक्टर
ऐसे, और ये है डी का बाइसेक्टर। ये चारों बाइसेक्टर मिल के जो ये फिगर फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे, दिस इज अ रेक्टेंगल यू हैव टू प्रूफ। लेट अस लेबल इट, इसको समझो एस पी क्यू आर एस लेबल कर। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो। ये जो चारों है ना, मतलब ए आर बी, ए एस ले लेते हैं ना उसको, ए एस बी क्यू सी क्यू एंड डी एस आर बाइसेक्टर्स। अब सी एस नाम, डी एस सॉरी, आप डी एस या डीपी भी दे सकते हो, वन एंड द सेम, मतलब इतना डी एस है और पूरा डीपी, तो आपको जो नाम देना आप दे सकते हो। अगर ये बाइसेक्टर्स है तो ये सारे एंगल सेम होते हैं, ये एक्स एक्स और ये हो जाएगा वाई वाई, करेक्ट। एंड पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो दिस विल आल्सो बी एक्स एक्स एंड दिस विल आल्सो बी वाई वाई। इतना सही है, ये आपको लेबल करना पड़ेगा डायग्राम। ओके, नाउ सी केयरफुली, एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180, क्या मैं लिख सकता हूँ वैसा? क्यों? आप लोग को कोइंसिडेंस पता चलता है, ये दो एंगल्स 180 होता है पैरेललोग्राम। सी पैरेललोग्राम में ये जो एंगल्स होते हैं ना, बाजू वाले एंगल्स, दे आर कोइंटीरियर एंगल्स बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, तो इनका टोटल 180 होता है। जैसे ये दोनों एंगल्स भी कोइंटीरियर है, इनका भी टोटल 180 है, फिर इन दोनों का भी टोटल 180 है। कोई भी एडजेसेंट एंगल्स है ना, उनका टोटल 180 होता है पैरेललोग्राम। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180। ओके, तो अगर एंगल ए प्लस एंगल डी 180 है, आई कैन राइट 2x प्लस 2y इक्वल्स 180। ओके, मींस x प्लस y इज 90, करेक्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, टू प्रूव x प्लस y इज 90। अभी हो गया सब। कैसे? सी दिस ट्राइंगल केयरफुली, इसमें x प्लस वाई इज 90, तो जो थर्ड एंगल होगा s, जहाँ पे s लिखा है वो क्या होगा? 90 ही होगा। जैसे अगर मैं लिखूं भी तो इन ट्राइंगल ए एस डी, x प्लस वाई प्लस एंगल ए एस डी इक्वल्स 180। So angle ASD will be 180 minus 90, that is 90 degrees. अगर ये 90 हो गया ASD तो ये भी 90 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
करेक्ट। अब जैसे आपने सेम चीज जो ये ट्रायंगल में किया है, वो सेम चीज ये ट्रायंगल में भी हो जाएगी, तो करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिखो। ठीक है, ये सेम चीज यहाँ पे भी होगी, तो सिमिलरली डायरेक्ट कंक्लूड करो कि दिस एंगल विल आल्सो बी 90। सिमिलरली एंगल पी क्यू आर विल आल्सो बी 90 डिग्रीज। ओके, नाउ दो एंगल 90 मिले। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें भी सेम चीज होगा। एक एक्स, नाइन वाई, और ये आर थर्ड एंगल है, तो आर भी 90 हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ए बी आर, चारों एंगल 90 मिल गए, मींस इट इज अ रेक्टेंगल। So let us say this is a rectangle A, B, C, D, and this will be the bisector and this will be the bisector. Correct. So you have to prove that ये जो figure बना है, it is a square. Okay.
यस, क्या करेंगे इसमें? सेम थिंग से एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। हाँ, सो अब यहाँ पे क्या होगा? सी, इसमें एक फायदा है, बिकॉज ये रेक्टेंगल है तो चारों एंगल इक्वल है, तो चारों एंगल का बाइसेक्टर इक्वल है, मतलब ऑल दीज एंगल्स विल बी 45। करेक्ट? ये एक बड़ा फायदा है यहाँ पे। ओके, तो इसमें आपको 90 भी डायरेक्टली मिल जाएगा। ये 90 हो गया, दो एंगल 45 है तो ये 90 है ना। सो ए आर, बी आर, सी पी एंड डी पी आर बाइसेक्टर्स। Therefore, each angle formed by the bisector is 45 डिग्री। ये सारे एंगल्स 45 हो गए। सो इन ट्राइंगल ए एच डी, 45 plus 45 plus angle ASD equals 180. So angle ASD is 90 degrees। ये 90 मिल गया। सिमिलरली लिख देते हैं बाकी सबके लिए। सिमिलरली एंगल R, एंगल P एंड एंगल PQR will be 90 degrees। ये सब हमें 90 मिल जाएगा। ठीक है, अब चारों 90 मिल गया, मतलब इतना तो श्योर हो गया दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। इतना तो श्योर हो गया। अब इसको स्क्वायर करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। मैं क्यों लिख रहा हूँ कि इट इज अ रेक्टेंगल? बिकॉज इतना तो पता चल गया कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब मुझे ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करना है। देखते कैसे करते। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए आर बी, क्या मैं लिख सकता हूं ए आर इक्वल्स बी आर? वाई? डायगोनल्स नहीं हो। 45 है तो दीज टू साइड्स विल बी इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। करेक्ट, सो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, एंड ठीक है, नाउ कंसीडर दीज टू ट्राइंगल्स। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना इजी है, इन दो ट्राइंगल्स को। 45 और बीच की साइड सेम है, तो एस ए से डैश से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। करो प्रूफ। सो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, देन आई कैन राइट
that AS equals BQ. है ना? मतलब देखो, पहले मैंने बोला कि पूरा AR और पूरा BR इक्वल है, फिर मैंने कहा दैट AS एंड BQ आर इक्वल। इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है ये भी इक्वल ही होगा। करेक्ट? कैसे लिखेंगे इसको? आई नो that AR equals BR. What is AR? AR is nothing but AS plus SR, and BR is nothing but BQ plus RQ. Okay, but AS और BQ cancel हो जाएगा because they are equal. Therefore, SR equals RQ. मतलब adjacent sides equal हो गए. Therefore, it is a square. Because it was already a rectangle. और अगर rectangle में adjacent sides are equal, then it becomes a square. ऐसे ही क्वेश्चन है। बाइसेक्टर आ रहा है कब से? नेक्स्ट 9 हो गए ना? 9 ही हुए अभी तक। 10, 6 more to go. ABCD bisector of angle A meets BC at point P. Okay. And AB is twice AD. AB is twice AD. ठीक है. और AB is twice AD बोला है, तो इसका कुछ यूज होगा. Prove that BP bisects angle B. BP bisects angle B. तो ये डायग्राम कुछ थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, थोड़ा बीच में आएगा किसी. मतलब एपी तो बाइसेक्टर दिया है, आपको प्रूव करना है कि बीपी भी बाइसेक्टर. ओके, ठीक है. एंड आई हैव टू प्रूव दैट एंगल एपीबी इज 90 डिग्रीज.
सी फर्स्टली देर इज एन ऑल्टरनेट एंगल here. ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, सो ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा, करेक्ट? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हुआ, ओके? सो एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए पी, ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो दीज टू साइड्स आर सेम, करेक्ट? सो देयरफॉर AD equals BP. ओके, बट क्वेश्चन में आपको दिया है दैट AB इज ट्वाइस AD, ओके? AB को आई कैन रिप्लेस इट विथ CD, AB एंड CD आर सेम, ठीक है? AD को आई कैन रिप्लेस विथ DP। इससे क्या हो गया? मुझे ये पता चला कि DP का डबल CD है, मींस P इज द मिड पॉइंट, है कि नहीं? सी क्या बोला था पहले आपको, दैट AB का हाफ है डी AD, ठीक है? बट AD एंड PD आर इक्वल, तो DP इज हाफ ऑफ AD AB, एंड AB और CD भी सेम है, so CD is twice DP, therefore P is the midpoint of CD। समझा क्या? जैसे अगर ये साइड समझो 10 है, ठीक है? या ऐसे नहीं समझाता हूँ, AD अगर 10 है तो AB इज 20, बरोबर? AB अगर 20 है, हमें क्या मिला? दिस विल ऑल्सो बी 10, ये दोनों सेम मिले, करेक्ट? पूरा AB 20 है तो पूरा CD भी 20 हुआ, और अगर पूरा CD 20 है तो ये भी 10 हुआ, दैट मीन्स P मिड पॉइंट हो गया। समझ रहा है? यही चीज हमने अभी लिखी थी, ओके? P इज द मिड पॉइंट, तो मतलब यहाँ पे भी डबल डैश कर देता हूँ और ये भी सेम हो जाएगा, करेक्ट? देयरफॉर DP इक्वल्स PC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। सी मैंने क्या किया पता है? दीज टू साइड्स आर इक्वल, P मिड पॉइंट मिला तो, ओके? एंड ये दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल है, समझ रहा है? दीज टू साइड्स आर इक्वल और ये दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल, मतलब कंक्लूड है कि दीज टू साइड्स आर इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल सेम हो गए, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल विल बी इक्वल। हाँ, देयरफॉर एंगल देयरफॉर एंगल CPB इज इक्वल्स टू एंगल CBP, और लेट इट बी y। अब ऑल्टरनेट से ये y यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना? एंगल CPB इज इक्वल्स टू एंगल ABP, ऑल्टरनेट, तो ये भी y हो गया। क्या प्रूव करना था, मैं भूल ही गया, हम कर क्या कर रहे थे? अच्छा हाँ, BP को बाइसेक्टर प्रूफ करना था ना, तो हो गया देयरफॉर BP बाइसेक्ट्स एंगल B। ये दोनों y मिल गए, मींस BP इज द बाइसेक्टर। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जल्दी हो जाएगा। सी एंगल A प्लस एंगल B 180 है, ठीक है? सो 2x प्लस 2y इक्वल्स 180,
So x plus y is 90. If x plus y is 90, तो ये 90 हो जाएगा. को इंटीरियर, यस. हाँ, रीजन लिख दो इसका, को इंटीरियर. ओके, एक्स प्लस वाई 90. अब चाहिए तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए पी बी. एक्स प्लस वाई प्लस एंगल ए बी पी इज 180. So angle ABP is 180 minus 90, that is 90 degrees. नेक्स्ट खत्म कर देते आज, वापस नहीं करना. ABCD is a parallelogram. M and N are taken on diagonal AM and CN. तो समझो ये M है और ये N है. They are taken on diagonals AC such that AM equals CN. ठीक है. Prove that BMDN is a parallelogram. ये तो बहुत सिंपल सम है, ये हमने ऑलरेडी किया है सम. सेम टू सेम सम. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ज्वाइन करता हूँ, इसको समझ में आएगा. और क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट में यही प्रूफ किया था कि दिस इज अ पैरेललोग्राम. ये होमवर्क करो. मैं रिकॉल करवाता हूँ. देखो ऐसे किया था हमने, अगर याद नहीं हो तो. पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था. कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. दीज टू साइड्स आर ऑलरेडी सेम एंड ऑपोजिट साइड्स आर सेम. सो कॉन्ग्रुएंट हो गया. दैट मीन्स डीएम इज इक्वल्स टू बीएम. ठीक है. देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो जो उसका लीनियर पेयर होगा वो भी सेम होगा. एंड ये ऑल्टरनेट बन रहा है यहाँ पे. सो ये लाइंस पैरेलल भी होगी. तो पैरेलल इक्वल दोनों है. सो देयरफॉर इट इज पैरेलल. तो क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज क्वेश्चन नंबर 10. नहीं 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 नहीं, 12 एक्चुअली, आप 12 एक बार रीड करो, देखो क्या पूछा है. एक्चुअली सेम टू सेम क्वेश्चन है. सोचो थोड़ा क्या बोला है और क्या करेंगे, आप बताओ मुझे. तो अभी अभी हमने किया. हाँ, ये x और ये x हो गया. ठीक है. ऑल्टरनेट से ये भी x मिलेगा. बरोबर. ये साइड भी इक्वल होगी. ओके.
देन ये दोनों एंगल्स भी सेम हो जाएंगे आइसोसेलिस से, बिकॉज ये दो साइड सेम, ये दो साइड्स ऑल्टरनेट से ये भी y, और फिर इन दोनों का एडिशन 180, तो x प्लस वाई इज 90 हो गया, फिर दिस इज 90, यही प्रूफ कर रहा है, एकदम बिल्कुल सेम सा होगा। ठीक है, चलो अच्छा, होमवर्क होमवर्क। क्वेश्चन 13 देखते हैं। ABCD is a square. A is joined to a point P on BC. A is joined to a point, रुको आप लोग ड्रॉ मत करना, पहले पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज अगर कुछ चेंजेस करना हुआ तो। A is joined to the point P on BC, तो let's say point P यहाँ पे है, so A is joined here, okay, and D is joined to the point Q on AB, so समझो Q यहाँ पे है, okay, AP equals DQ दिया है, ठीक है, prove that AP and DQ are perpendicular to each other. तो AP and DQ are perpendicular, मतलब ये एंगल को 90 प्रूफ करता है। करो, प्रूव ट्राइंगल्स PAB and DAQ congruent. Which two triangles? PAB and DAQ, ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? ABP नाम देता हूं मैं, ABP एंड ट्राइंगल DAQ। तो पहले तो AB इक्वल्स AD हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स एंगल B हो जाएगा 90 डिग्रीज, और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है AP इक्वल्स DQ। RHS टेस्ट होगा, RHS 90 और हाइपोटेन्यूज और एक साइड सेम है, ठीक है, तो दिस विल बी RHS टेस्ट।
अब सी, once you prove the triangles congruent, I can write angle AQD या DQA लिखता हूँ. Angle DQA is equals to angle APB. Can I write this? मतलब ये दो एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं. दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल बाय CPCTC. ओके, नाउ कंसिडर दिस ट्राइंगल. ये एक ट्राइंगल कंसिडर करो, ठीक है. इन इसको नाम दे देता हूँ वन, जो CPCTC लिखा. इन ट्राइंगल ABP अगर मैं सारे एंगल्स को ऐड करूंगा, जैसे कि एंगल PAB प्लस एंगल APB प्लस एंगल B इक्वल्स 180 डिग्रीज. बरोबर. दिस प्लस दिस इज 180. करेक्ट. बट एंगल B 90 है क्योंकि स्क्वायर है. सो एंगल PAB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90. ये B को 90 ले लिया मैंने. सो आई एम गेटिंग दैट एंगल PAB प्लस एंगल APB इज 90 डिग्रीज. ओके, एक बार देख लो. तो मतलब ये मुझे 90 मिला. अब PAB को मैं OAQ लिख सकता हूँ क्या? PAB इज दिस, PAB ये पूरा है, तो इसको मैं OAQ भी लिख सकता हूँ ना. एक ही बात है, ठीक है. और APB मुझे किससे इक्वल मिला है? DQA से इक्वल मिला हुआ है. तो एंगल DQA इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. अब आपको ये जो दो एंगल लिखे हैं आपने 90, वो दो कौन से एंगल्स है? OQA मींस दिस एंगल एंड DQA मतलब ये वाला एंगल. ये दोनों का टोटल 90 है, तो मतलब ये थर्ड एंगल 90 ही होगा. इसको भी लिख देते हैं लेकिन. इन ट्राइंगल AOQ एंगल OAQ प्लस एंगल OQA प्लस एंगल AOQ इक्वल्स 180 डिग्रीज. बट इन दोनों का टोटल इज 90. Therefore, DQ is perpendicular to AP. Done? In a quadrilateral ABCD, ऐसे एक रैंडम क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं. AB equals AD and CB equals CD. ठीक है. Prove that AC bisects angle BAD. AC मतलब ये लाइन bisects angle BAD. ठीक है, बहुत इजी है ये तो. ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सारे ही साइड सेम है ना. और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल सेम हो गया, तो हो गया प्रूफ. AC bisects BAD. अरे नहीं रुको, AC is perpendicular to BD.
अच्छा बीडीपी बनाना पड़ेगा और इसको 90 प्रूफ करना है। पहले फर्स्ट पार्ट कर दे फटाफट। इन दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, AB equals AD, AC common side, BC equals C। अच्छा डन। सो एंगल DAC is equals to angle BAC, CPCTC. Therefore, AC bisects angle BAD. प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ। अब सेकेंड पार्ट के लिए टेक दीज टू ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स लो, ये और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ये दो ट्राइंगल्स। और आपको ऑलरेडी पता है दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ए हो जाएगा कॉमन साइड, फिर दो एंगल आपको ऑलरेडी पता है, एंड AD इक्वल्स AB। सो कौन सा टेस्ट हुआ? SAS टेस्ट से बिल्कुल। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल सेम हुए, दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOB, और समझो वो x है। सो x प्लस x 180 होगा लीनियर पेयर से। ये दोनों एंगल सेम मिले और इनका टोटल 180 होगा। सो 2x is 180, x is 90, therefore AC is perpendicular to BD। डन। नेक्स्ट। कम टू सॉल्व दिख रहा है मुझे, बट डिफिकल्ट भी होगा, इसीलिए बुक में सॉल्व किया है।
ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब जिसके दूसरे दो नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ओके, और क्या दिया है? प्रूव दैट डीएबी इक्वल्स सीबीए। ठीक है, तो जो हिंट दिया है उसका यूज करते हैं। हिंट में क्या बोला है? ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स, इधर से और इधर से परपेंडिकुलर बनाओ। ठीक है, लेट्स से इनको नाम दे देते हैं एम एंड एन। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा ये, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, सो ये परपेंडिकुलर होने से अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपको। ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे? सी, ये जो आपने बनाया है ना, डी एम और सी एन, ये हाइट है ट्रेपेजियम की। ठीक है, ये हाइट सेम ही रहेगी। मतलब जैसे अगर यहाँ पे भी हाइट बनाओ तो भी सेम होगा, यहाँ पे भी बनाओ तो भी सेम होगा, बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है ना, वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये जो हाइट है ना, ये सेम ही है। ओके, सो ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल बी एन सी, इन दीज टू ट्राइंगल्स यू हैव 90 डिग्रीज। एंगल ए एम डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एन सी, ये तो हो गया 90 डिग्रीज। देन ए डी इक्वल्स बी सी, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल हुआ। एंड डी एम इक्वल्स सी एन, ये साइड इक्वल हुई। So by RHS test, triangles are congruent. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। करेक्ट? करेक्ट है। हेलो? कैसे करते कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? कौन सा कॉमन साइड? तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हो, ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं यार। कैसे कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो आप इन दोनों को? बीडी कॉमन साइड, ठीक है, ये दो साइड सेम है, ठीक है। हाँ, बट ये जो एंगल आ रहा है ना आपको, ये एंगल दोनों साइड में नहीं है, मतलब दोनों साइड्स के बीच में नहीं है। आप ये देखो ना, आप ये देखो, ये जो साइड है और ये जो साइड है, दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है, तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता प्रूफ। अच्छा, ये तो हो गया प्रूफ। डी ए बी इक्वल्स सी, मतलब हमें ये एंगल्स मिल गए।
this angle is equals to this angle. We have proved that. Okay. Now see, ये दोनों जो एंगल्स होते हैं ना, दिस एंड दिस, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल्स है. सो मतलब आई कैन राइट दैट एंगल DAB प्लस एंगल ADC equals 180 degrees. And similarly, I can write angle CBA plus angle PCD is 180 degrees. मतलब इन दोनों का टोटल 180 है और इन दोनों का टोटल भी 180 है. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल DAB प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल CBA प्लस एंगल BCD. इन दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, बिकॉज बोथ आर 180. बट DAB एंड CBA तो इक्वल है, कैंसिल हो गया. So angle ADC equals angle BC. This was your second part. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ. ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है? AC इक्वल्स BD. ये दो ट्राइंगल्स देखो, ये और ये, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को. इजी है क्योंकि तीनों साइड्स दिए हुए हैं, दोनों साइड्स दिए हुए हैं और एक एंगल आपको मिला ही है, एंगल D इक्वल्स एंगल C आपने ढूंढा हुआ है, एंड CD इज कॉमन साइड. by SAS test, if triangles are congruent, I can write AC equals BD. This was the third part. Fourth part भी है. फोर्थ पार्ट में क्या करना है? OA equals OB, OC equals OD. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. बट पहले CPCTC लिखना पड़ेगा. एक मिनट. CPCTC से यू विल गेट दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल, दिस साइड्स आर सेम. सी, ये जो ACD एंड BCD को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, इसके बाद CPCTC से आई विल राइट दैट एंगल DAO
but as it is, so I want this angle as equal. ये तो लिखी angle OAD is equals to angle OBC CPCTC. So मैंने लिखा कि this angle is equals to this angle. Okay. हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, इसको और इसको किया था. उसको भी करना पड़ेगा. इसको नाम दे दो 1 in triangle ADB and triangle BCA. कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इन दोनों को? AB is common side, angle A equals angle B and AD equals BC. ठीक है. So therefore triangle कौन सा टेस्ट हुआ ये? SAS टेस्ट से triangle ADB is congruent to triangle BC. ये हो गया. तो इसका congruent प्रूव होने के बाद I can write that angle ADB is equals to angle BCA CPCTC. ये प्रूफ करने के लिए मैंने किया, इन दोनों एंगल को प्रूफ करने के लिए. दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब बोलेंगे, अब वापस बोलेंगे. उसके लिए तो ये बना है. इसको नाम 1 दिया था, इसको नाम 2 देंगे. आने तो नहीं चाहिए. अब ये ट्राइंगल्स लेंगे, एंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी. दो एंगल्स जो आपने अभी ढूंढे हुए वो, और एक साइड लेंगे एडी इक्वल्स बीसी. मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ डायग्राम को. Done. फोर्टीन सी कंप्लीट.